اب آپ چاہیں تو ہم سے اپنی کتاب کی آڈیو بک بنوا کر دنیا میں موجود ہزاروں سامعین تک اپنی کتاب پہنچا سکتے ہیں۔ زیادہ جانکاری کے لیے نیچے دیے گئے میل آئی ڈی پر ہم سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔ سعادت حسن منٹو کی کہانی فوبھا بائی۔ حیدرآباد سے شہاب آیا تو اس نے بمبئی سینٹرل اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر پہلا قدم رکھتے ہی حنیف سے کہا، دیکھو بھائی، آج شام کو وہ معاملہ ضرور ہوگا، ورنہ یاد رکھو میں واپس چلا جاؤں گا۔ حنیف کو معلوم تھا کہ وہ معاملہ کیا ہے، چنانچہ شام کو اس نے ٹیکسی لی، شہاب کو ساتھ لیا، گرانٹ روڈ کے ناکے پر ایک دلال کو بلایا اور اس سے کہا، میرے دوست حیدرآباد سے آئے ہیں، ان کے لیے ایک اچھی چھوکری چاہیے۔ دلال نے اپنی کان سے اڑسی ہوئی بیڑی نکالی اور اس کو ہونٹوں میں دبا کر کہا، دکنی چلے گی؟ حنیف نے شہاب کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ شہاب نے کہا، نہیں بھائی، مجھے کوئی مسلمان چاہیے۔ مسلمان؟ دلال نے بیڑی کو چوسا۔ چلیے، اور یہ کہہ کر وہ ٹیکسی کی اگلی نشست پر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور سے اس نے کچھ کہا، ٹیکسی سٹارٹ ہوئی اور مختلف بازاروں سے ہوتی ہوئی فالجٹ اسٹریٹ کے ساتھ والی گلی میں داخل ہوئی۔ یہ گلی ایک پہاڑی پر تھی، بہت اونچائی تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی کو فرسٹ گیئر میں ڈالا۔ حنیف کو ایسا محسوس ہوا کہ راستے میں ٹیکسی رک کر واپس چلنا شروع کر دے گی، مگر ایسا نہ ہوا۔ دلال نے ڈرائیور کو اونچان سے عین آخری سرے پر جہاں چوک سا بنا تھا رکنے کے لیے کہا۔ حنیف کبھی اس طرف نہیں آیا تھا۔ اونچی پہاڑی تھی جس کے دائیں طرف ایک دم ڈھلان تھی۔ جس بلڈنگ میں دلال داخل ہوا اس کی صرف 2 منزلیں تھیں، حالانکہ دوسری طرف کی بلڈنگیں سب کی سب 4 منزلہ تھیں۔ حنیف کو بعد میں معلوم ہوا کہ ڈھلان کے باعث اس بلڈنگ کی 3 منزلیں نیچے تھیں جہاں لفٹ جاتی تھی۔ شہاب اور حنیف دونوں خاموش بیٹھے رہے، انہوں نے کوئی بات نہ کی۔ راستے میں دلال نے اس لڑکی کی بہت تعریف کی تھی جس کو لانے وہ اس بلڈنگ میں گیا تھا۔ اس نے کہا تھا، بڑے اچھے خاندان کی لڑکی ہے، اسپیشل طور پر آپ کے لیے نکال رہا ہوں۔ دونوں سوچ رہے تھے یہ لڑکی کیسی ہوگی جو اسپیشل طور پر نکالی جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دلال نمودار ہوا، وہ اکیلا تھا۔ ڈرائیور سے اس نے کہا، گاڑی واپس کرو۔ یہ کہہ کر وہ اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی ایک چکر لے کر مڑی۔ 3-4 بلڈنگیں چھوڑ کر دلال نے ڈرائیور سے کہا، روک لو۔ پھر حنیف سے مخاطب ہوا، آ رہی ہے، پوچھ رہی تھی کیسے آدمی ہیں۔ میں نے کہا نمبر 1۔ 10-15 منٹ کے بعد ایک دم ٹیکسی کا دروازہ کھلا اور ایک عورت حنیف کے ساتھ بیٹھ گئی۔ رات کا وقت تھا، گلی میں روشنی کم تھی، اس لیے شہاب اور حنیف اس کو اچھی طرح نہ دیکھ سکے۔ سیٹ پر بیٹھتے ہی اس نے کہا، چلو۔ ٹیکسی تیزی سے نیچے اترنے لگی۔ حنیف کے پاس کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں کوئی معاملہ ہو سکے، چنانچہ جیسا طے پایا تھا وہ ڈاکٹر خان صاحب کے پاس چلی گئی۔ وہ ملٹری ہاسپٹل میں متعین تھا اور اس کو وہیں 2 کمرے ملے ہوئے تھے۔ شہاب نے بمبئی آتے ہی اس کو فون کر دیا تھا کہ حنیف کے ساتھ رات کو اس کے پاس آئے گا اور معاملہ ساتھ ہوگا۔ چنانچہ ٹیکسی ملٹری ہسپتال میں پہنچی۔ دلال 100 روپیہ لے کر گرانٹ روڈ پر اتر گیا۔ راستے میں بھی شہاب اور حنیف اس عورت کو اچھی طرح نہ دیکھ سکے، کوئی خاص باتیں بھی نہ ہوئیں۔ شہاب نے جب اس سے اپنے ٹھیٹھ حیدرآبادی لہجے میں پوچھا، آپ کا اس میں گرامی؟ تو اس عورت نے کہا، فوبھا بائی۔ فوبھا بائی؟ حنیف سوچتا رہ گیا کہ یہ کیسا نام ہے۔ ڈاکٹر خان ان کا انتظار کر رہا تھا۔ سب سے پہلے شہاب کمرے میں داخل ہوا۔ دونوں گلے ملے اور خوب ایک دوسرے کو گالیاں دیں۔ ڈاکٹر خان نے جب ایک جوان عورت کو دروازے میں دیکھا تو ایک دم خاموش ہو گیا۔ آئیے آئیے، اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ ڈاکٹر خان، آپ؟ اس نے شہاب کی طرف دیکھا۔ شہاب نے اس عورت کی طرف دیکھا۔ عورت نے کہا، فوبھا بائی۔ ڈاکٹر خان نے بڑھ کر اس سے ہاتھ ملایا۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ فوبھا بائی مسکرائی۔ مجھے بھی خوشی ہوئی۔ شہاب اور حنیف نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر خان نے دروازہ بند کر دیا اور اپنے دوستوں سے کہا، آپ دوسرے کمرے میں چلے جائیے، مجھے کچھ کام کرنا ہے۔ شہاب نے جب فوبھا بھائی سے کہا، چلیے، تو اس نے ڈاکٹر خان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں، آپ بھی تشریف لائیے، آپ تشریف لے چلیے، میں آتا ہوں۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر خان نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ شہاب اور حنیف فوبھا بھائی کو اندر لے گئے۔ تھوڑی دیر گفتگو ہوئی تو ان کو معلوم ہوا کہ اس کی زبان موٹی تھی، وہ شین اور سین ادا نہیں کر سکتی تھی، اس کے بدلے اس کے منہ سے فے نکلتی تھی۔ اس کا نام اس لحاظ سے شوبھا بائی تھا، لیکن کچھ دیر اور باتیں کرنے کے بعد ان کو پتا چلا کہ شوبھا اس کا اصلی نام نہیں تھا۔ وہ مسلمان تھی، جے پور اس کا وطن تھا جہاں سے وہ 4 سال ہوئے بھاگ کر بمبئی چلی آئی تھی۔ اس سے زیادہ اس نے اپنے حالات نہ بتائے۔ معمولی شکل و صورت تھی،
आंखें बड़ी नहीं थीं, नाक भी खुशवज़ा नहीं थी। बालाई होंठ के ऐन दरमियान एक छोटे से जख्म का निशान था। जब वो बात करती तो ये निशान थोड़ा सा फैल जाता। गले में उसने जड़ाऊ नेकलेस पहना हुआ था। दोनों हाथों में सोने की चूड़ियां थीं। बहुत ही बातूनी औरत थी। बैठते ही उसने इधर उधर की बातें शुरू कर दी। हनीफ और शहाब सिर्फ हूँ हाँ करते रहे। फिर उसने उनके बारे में पूछना शुरू किया कि वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या उम्र है, फादी फुदा हैं या गैर फादी फुदा, हनीफ इतना दुबला क्यों है, फहाब ने 2 मसनूई दांत क्यों लगवाए हैं, गोफ्त खोरा था तो उसका इलाज डॉक्टर खान से क्यों नहीं कराया, फरमाना क्यों है, फेर क्यों नहीं गाता। शहाब ने उसे कुछ शेर सुनाए। शोभा ने बड़े जोरों की दाद दी जब शहाब ने ये शेर सुनाया, खेतों को दे लो पानी, अब बह रही है गंगा, कुछ कर लो नौजवानों, उठती जवानियां हैं। तो शोभा उछल पड़ी, वाह जनाब साहब वाह, बहुत अच्छा फेर है, उठती जवानियां हैं, वाह वाह। इसके बाद शोभा ने बेशुमार शेर सुनाए, बिल्कुल बेजोड़ बेतुके, जिनका सर था न पैर। शेर सुनाकर उसने शहाब से कहा, फहाब साहब मज़ा आया आपको? शहाब ने जवाब दिया, बहुत। शोभा ने शर्मा कर कहा, ये फेर मेरे थे, मुझे फायरी का बहुत शौक है। शहाब और हनीफ दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। इसके बाद सिर्फ एक सही शेर शोभा ने सुनाया, कभी तो मेरे दर्द दिल की खबर ले, मेरे दर्द से आफना होने वाले। यह शेर हनीफ कई बार सुन चुका था और शायद पढ़ भी चुका था, मगर शोभा ने कहा, हनीफ साहब ये फेर भी मेरा है। हनीफ ने खूब दाद दी, माफ़ा अल्लाह, आप तो कमाल करती हैं। शोभा चौंकी, माफ़ कीजिएगा, मेरी ज़बान में तो कुछ खराबी है, लेकिन आपने क्यों माफ़ा अल्लाह के बदले माफ़ा अल्लाह कहा। हनीफ और शहाब दोनों बेख्तियार हंस पड़े। शोभा भी हंसने लगी। इतने में डॉक्टर खान आ गया। उसने अंदर दाखिल होते ही शोभा से कहा, क्यों जनाब, इतनी हंसी किस बात पर आ रही है। ज़्यादा हंसने के बायस शोभा की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने रुमाल से उनको पोंछा और डॉक्टर खान से कहा, एक बात ऐसी हुई कि हम सब हंफ पड़े। शोभा ने उससे कहा, आइए बैठिए। चारपाई के एक तरफ सरक कर उसने डॉक्टर खान का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बिठा लिया। फिर शेरो शायरी शुरू हो गई। शोभा ने लंबी लंबी 4 बेतुकी गज़लें सुनाई। सब ने दाद दी। शहाब उकता गया। वो मामला चाहता था। हनीफ उसके बदले हुए तेवर देखकर भांप गया। चुनांचे उसने शहाब से कहा, अच्छा भाई, मैं रुखसत चाहता हूँ, इंशाअल्लाह कल सुबह मुलाकात होगी। वो ये कहकर कुर्सी पर से उठा, मगर शोभा ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, आप नहीं जा सकते। हनीफ ने जवाब दिया, मैं माजरत चाहता हूँ, बीवी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। ओह नहीं, ओह लेकिन नहीं, आप थोड़ी देर और ज़रूर बैठें, अभी तो सिर्फ 11 बजे हैं। शोभा ने इसरार किया। शहाब ने एक जमाई ली, बहुत वक्त हो गया है। शोभा ने मुस्कुराकर शहाब की तरफ देखा, मैं फारी रात आपके पास हूँ। शहाब का तकद्दुर दूर हो गया। हनीफ थोड़ी देर बैठा, फिर रुखसत ली और चला गया। दूसरे रोज सुबह 9 बजे के करीब शहाब आया और रात की बात सुनाने लगा। अजीब व गरीब औरत थी ये फोभा बाई। पेट पर बालिश्त भर ऑपरेशन का निशान था। कहती थी कि वो एक लकड़ी वाले सेठ की दाश्ता थी। उसने एक फिल्म कंपनी खोल दी थी। उसके चेकों पर दस्तखत शोभा ही के होते थे। मोटर थी जो अब तक मौजूद है। नौकर चाकर थे। लकड़ी वाला सेठ उससे बेहद मोहब्बत करता था। उसके पेट का ऑपरेशन हुआ तो उसने 1000 रुपया यतीम खाने को दिया। हनीफ ने पूछा, ये लकड़ी वाला सेठ अब कहाँ है? शहाब ने जवाब दिया, दूसरी दुनिया में टाल खोले बैठा है। औरत खूब थी ये फोबा बाई। मैं दूसरे कमरे में सो गया तो वो डॉक्टर खान के साथ लेट गई। सुबह 5 बजे खान ने उससे कहा कि अब जाओ। शोभा ने कहा, अच्छा मैं जाती हूँ, लेकिन मेरे जेवर तुम अपने पास रख लो, मैं अकेली इनके साथ बाहर नहीं निकलती। हनीफ ने पूछा, डॉक्टर ने जेवर रख लिए? शहाब ने सर हिलाया। हाँ, पहले तो उसका ख्याल था कि नकली हैं, मगर दिन की रोशनी में जब उसने देखा तो असली थे। और वो चली गई? हाँ चली गई, ये कहकर कि वो किसी रोज़ आकर अपने जेवर वापस ले जाएगी। ये तुमने बड़े अचंभे की बात सुनाई। खुदा की कसम हकीकत है। शहाब ने सिगरेट सुलगाया। इसीलिए तो मैंने कहा ये फोभा बाई अजीबो गरीब औरत है। हनीफ ने पूछा, वैसे कैसी औरत थी? शहाब झेंप सा गया। भाई मुझे ऐसे मामलों का कुछ पता नहीं, ये तुम खान से पूछना, वो एक्सपर्ट है। शाम को दोनों खान से मिले। जेवर उसके पास महफूज थे।
शोभा लेने नहीं आई थी। खान ने बताया, मेरा ख्याल है शोभा किसी दिमागी सदमे का शिकार है। शहाब ने पूछा, तुम्हारा मतलब है पागल है? खान ने कहा, नहीं, पागल नहीं है, लेकिन उसका दिमाग यकीनन नॉर्मल नहीं। बेहद मुखलिस औरत है। एक लड़का है उसका जयपुर में, उसको बराबर 200 रुपये माहवार भेजती है। हर तीसरे महीने उससे मिलने जाती है। जयपुर पहुंचते ही बुर्का ओढ़ लेती है, वहां उसे पर्दा करना पड़ता है। हनीफ ने कहा, यह तुमने कैसे समझा कि उसका दिमाग नॉर्मल नहीं? खान ने जवाब दिया, भाई मेरा ख्याल है नॉर्मल होती तो अपने 1,500-2 हज़ार के जेवर एक अजनबी के पास क्यों छोड़ जाती? इसके अलावा उसको मॉर्फिया के इंजेक्शन लेने की आदत है। शहाब ने पूछा, नशा होता है एक किस्म का? खान ने जवाब दिया, बहुत ही खतरनाक किस्म का, शराब से भी बदतर। इसकी आदत कैसे पड़ी उसे? शहाब ने मेज पर से पेपर वेट उठाकर दवात पर रख दिया। ऑपरेशन हुआ तो बिगड़ गया, दर्द शिद्दत का था। उसका एहसास कम करने के लिए डॉक्टर मॉर्फिया के इंजेक्शन देते रहे, तकरीबन 2 महीने तक। बस आदत हो गई। डॉक्टर खान ने मॉर्फिया और उसके खतरनाक असरात पर एक लेक्चर सा शुरू कर दिया। 1 हफ्ता हो गया, शोभा न आई। शहाब वापस हैदराबाद चला गया था। डॉक्टर खान जेवर लेकर हनीफ के पास आया कि चलो दे आए। हमने ग्रांट के नाके पर दलाल को बहुत तलाश किया जो शहाब और हनीफ को शोभा के मकान के पास ले गया था, मगर वो ना मिला। हनीफ को इतना मालूम था कि गली कौन सी है और बिल्डिंग कौन सी है। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, हम पता लगा लेंगे। ये जेवर मैं अपने पास नहीं रखना चाहता, चोरी हो गए तो क्या करूंगा? वो तो अजीब बेपरवाह औरत है। दोनों टैक्सी में वहां पहुंच गए। डॉक्टर खान को हनीफ ने बिल्डिंग बता दी और कहा, मैं नहीं जाऊंगा भाई, तुम तलाश करो उसे। डॉक्टर खान अकेला उस बिल्डिंग में दाखिल हुआ। 1-2 आदमियों से पूछा, मगर शोभा का कुछ पता न चला। नीचे से लिफ्ट ऊपर को आई तो होटल का छोकरा प्यालियां उठाए बाहर निकला। खान ने उससे पूछा तो उसने बताया कि सबसे निचली मंजिल के आखिरी फ्लैट पर चले जाओ। लिफ्ट के जरिए से खान नीचे पहुंचा। आखिरी फ्लैट की घंटी बजाई। थोड़ी देर के बाद एक बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला। खान ने उससे पूछा, शोभा बाई हैं? बुढ़िया ने जवाब दिया, हाँ हैं। खान ने कहा, जाओ उससे कहो कि डॉक्टर खान आए हैं। अंदर से शोभा की आवाज़ आई, आइए डॉक्टर साहब आइए। डॉक्टर खान अंदर दाखिल हुआ। छोटा सा ड्राइंग रूम था, चमकीले फर्नीचर से भरा हुआ। फर्श पर कालीन बिछे हुए थे। बुढ़िया दूसरे कमरे में चली गई। फौरन ही शोभा की आवाज़ आई, डॉक्टर साहब आ जाइए, मैं बाहर नहीं आ सकती। डॉक्टर खान दूसरे कमरे में दाखिल हुआ। शोभा चादर ओढ़े लेटी थी। खान ने उससे पूछा, क्या बात है? शोभा मुस्कुराई, कुछ नहीं डॉक्टर साहब, तेल मालिश करा रही थी। डॉक्टर पलंग के पास कुर्सी पर बैठ गया। जेब से रुमाल निकाला जिसमें जेवर बंधे थे, खोलकर उसे पलंग पर रख दिया। कब तक मैं तुम्हारे इन जेवरों की हिफाजत करता रहूंगा? तुम ऐसी गई कि फिर इधर का रुख तक न किया। शोभा हंसी, मुझे बहुत काम थे, लेकिन आपने क्यों तकलीफ की? मैं खुद आके ले जाती। फिर उसने बुढ़िया से कहा, चाह मंगा डॉक्टर साहब के लिए। डॉक्टर ने कहा, नहीं, अब मुझे जाना है। डॉक्टर ने कहा, नहीं, मुझे अब जाना है। कहाँ? अस्पताल। टैक्सी में आए हैं आप? हाँ, बाहर खड़ी है। डॉक्टर ने सर के इशारे से हाँ कहा। तो आप चलिए, मैं आती हूँ। ये कहकर उसने जेवर तकिए के नीचे रख दिए और रुमाल डॉक्टर खान को दे दिया। डॉक्टर खान हनीफ के पास पहुंचा तो उसने पूछा, मिल गई? डॉक्टर मुस्कुराया, मिल गई, आ रही है। 15-20 मिनट के बाद शोभा ने तेजी से टैक्सी का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गई। डॉक्टर खान के कमरे में देर तक फजूल किस्म की शेरबाजी होती रही। हिजरो विसाल और इश्क मोहब्बत के बेशुमार आमियाना अशार शोभा ने सुनाए और उन्हें अपने नाम से मंसूब किया। डॉक्टर खान और हनीफ ने खूब दाद दी। शोभा बहुत खुश हुई और कहने लगी, याकूब फेट घंटों मुझसे फेर फुना करते थे। याकूब फेट वो लकड़ी वाला सेठ था जिसने शोभा के लिए एक फिल्म कंपनी खोली थी। याकूब फेट वो लकड़ी वाला सेठ था जिसने शोभा के लिए एक फिल्म कंपनी खोली थी। डॉक्टर खान और हनीफ हंस पड़े। शोभा भी हंसने लगी। डॉक्टर खान और शोभा की दोस्ती हो गई। शुरू में तो वो हफ्ते में 2 बार आती, अब करीब करीब हर रोज आने लगी। रात आती, सुबह सवेरे चली जाती। शाम को बिला नागा मॉर्फिया का इंजेक्शन लेती। डॉक्टर इंजेक्शन लगाने से पहले उसके बाजू पर बेहिस करने वाली दवा लगा देता था। ये ठंडी ठंडी चीज उसे बहुत पसंद थी। 3 महीने गुजरे तो शोभा जयपुर जाने के लिए तैयार हुई। मोटर अपनी खान के हवाले कर दी कि वो उसका ध्यान रखे। डॉक्टर उसे स्टेशन पर छोड़ने गया। देर तक गाड़ी में एक दूसरे से बातें करते रहे। जब गाड़ी चलने लगी तो शोभा ने एकदम डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया। मुझे क्यों एकदम ऐसा लगा है कि कुछ होने वाला है? डॉक्टर ने कहा, क्या होने वाला है?
शोभा के चेहरे से वहशत बरसने लगी। मालूम नहीं, मेरा दिल बैठा जा रहा है। डॉक्टर खान ने उसे दम दिलासा दिया। गाड़ी चल दी। दूर तक शोभा का हाथ हिलता रहा। जयपुर से शोभा के 2 खत आए, जिनसे सिर्फ इतना पता चलता था कि वो खैरियत से पहुंच गई है। जब वापस आएगी तो उसके लिए बहुत से तोहफे लाएगी। इसके बाद एक कार्ड आया जिसमें ये लिखा था, मेरी अंधेरी जिंदगी में सिर्फ एक दिया था, वो कल खुदा ने बुझा दिया, भला हो उसका। डॉक्टर खान ने ये अल्फाज पढ़े तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। भला हो उसका में बेपनाह गम था। बहुत अरसा गुजर गया, शोभा का कोई खत ना आया। पूरा 1 बरस बीत गया। डॉक्टर खान को उसका कोई पता न चला। शोभा अपनी मोटर उसके हवाले कर गई थी। उस बिल्डिंग में गया जिसकी सबसे निचली मंजिल में वो रहा करती थी। फ्लैट पर कोई और ही काबिज था, एक दलाल किस्म का आदमी। डॉक्टर खान आखिर थक हार कर खामोश हो गया। मोटर उसने एक गैराज में रखवा दी। एक दिन हनीफ घबराया हुआ अस्पताल आया। उसका चेहरा जर्द था। डॉक्टर खान को ड्यूटी से हटाकर वो एक तरफ ले गया और उससे कहा, मैंने आज शोभा को देखा। डॉक्टर ने हनीफ का बाजू पकड़कर एकदम पूछा, कहाँ? औपाई पर। मैं उसे बिल्कुल न पहचानता क्योंकि वो महज हड्डियों का ढांचा थी। डॉक्टर खान खोखली आवाज में बोला, हड्डियों का ढांचा? हनीफ ने सरदाह भरी। शोभा नहीं थी, उसका साया था। आंखें अंदर को धसी हुई, बाल परेशान और गर्द आलूद। यूं चलती थी कि अपने आप को घसीट रही है। मेरे पास आई और कहा, मुझे 5 रुपए दो। मैंने उसको ना पहचाना। पूछा, क्या करोगी 5 रुपए लेकर? बोली, मॉर्फिया का टीका लूंगी। एकदम मैंने गौर से उसकी तरफ देखा। उसके बालाई होंठ पर जख्म का निशान मौजूद था। मैं चिल्लाया, शोभा? उसने थकी हुई वीरान आंखों से मुझे देखा और पूछा, कौन हो तुम? मैंने कहा, हनीफ। उसने जवाब दिया, मैं किसी हनीफ को नहीं जानती। मैंने तुम्हारा जिक्र किया कि तुमने उसे बहुत तलाश किया, बहुत ढूंढा। ये सुनकर उसके होठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट पैदा हुई और कहने लगी, उससे कहना मत मुझे ढूंढे, मेरी तरफ देखो। मैं इतनी मुद्दत से अपना खोया हुआ लाल ढूंढती फिर रही हूँ। ये ढूंढना बिल्कुल बेकार है, कुछ नहीं मिलता। लाओ 5 रुपए दो मुझे। मैंने उसे 5 रुपए दिए और कहा, अपनी मोटर तो ले जाओ डॉक्टर खान से। वो कह लगाती हुई चली गई। खान ने पूछा, कहाँ? हनीफ ने जवाब दिया, मालूम नहीं, किसी डॉक्टर के पास गई होगी। डॉक्टर खान ने बहुत तलाश किया मगर शोभा का कुछ पता न चला।